نیلسن کے مقامی ہال میں چنار فری ڈائلیسس سینٹر UK کی 13ویں سالگرہ کے سلسلے میں ایک خوبصورت تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں ہاؤس آف لارڈ کے رکن لارڈ واجد خان اور لارڈ نذیر احمد سمیت بڑی تعداد میں پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی نے شرکت کی۔ تقریب کا مزید احوال جانتے ہیں راجہ واجد کی اس رپورٹ میں۔ نیلسن کے مقامی ہال میں چنار فری ڈائلیسس سینٹر UK کی 13ویں سالگرہ کی خوبصورت تقریب سجائی گئی۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا گیا۔ ہر صبح مدینے میں، ہر شام مدینے میں۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ممبر گورننگ باڈی چنار فری ڈائلیسس UK چودھری محمد اسلم بنڈالوی نے ڈائلیسس سینٹر کے اغراض و مقاصد اور گزشتہ سالوں کی کارکردگی پر روشنی ڈالی۔ تقریب سے اپنے خطاب میں لارڈ نذیر احمد اور دوسرے مقررین نے چنار فری ڈائلیسس سینٹر کی تمام ٹیم کو 13ویں سالگرہ پر مبارکباد دیتے ہوئے اس فلاحی سینٹر کے کام کو سراہا اور بھمبر آزاد کشمیر اور گرد و نواح میں بسنے والے لوگوں کے لیے اس سینٹر کو مسیحا قرار دیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے شرکا کا کہنا تھا کہ چنار فری ڈائلیسس سینٹر سے ہزاروں لوگ مستفید ہو رہے ہیں اور مخیر حضرات کو ایسے فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ چنار فری ڈائلیسس سینٹر بہت ہی زبردست قسم کی سروس پرووائڈ کر رہے ہیں، وہاں پہ ہزاروں لوگوں کو فائدہ پہنچا ہے۔ آج بھی تقریباً 33 وہاں پہ مشینیں ہیں، ڈبل شفٹ کام کر رہے ہیں۔ All of the volunteers for the Chinar Free Dialysis Centre have been working tremendously hard for the last 13 years to make sure that the centre has the support that it needs to carry out the vital work that it needs. آج چنار ڈائلیسس سینٹر کے حوالے سے ایک پروگریس رپورٹ بھی ہمیں انہوں نے دی ہے۔ ماشاءاللہ زبردست محفل وہ یہاں انہوں نے حاجی عارف صاحب اور تمام جو دیگر دوست بزرگ انہوں نے سجائی ہے، کیونکہ یہ کمیونٹی کے جو حصہ ہے، یہ انسانیت کا کام ہے۔ یہ ہر آدمی سمجھتا ہے میں بڑھ چڑھ کے سپورٹ کروں، اور ایسے کام ہونے چاہیے۔ آج کی اس تقریب کا اصل مقصد جو ہے یہ تو ان لوگوں کو اپریشیٹ کرنا ہے جنہوں نے اس تنظیم کو قائم کیا اور جنہوں نے اس کے ساتھ تعاون کیا۔ چنار فری ڈائلیسس سینٹر UK کے صدر ڈاکٹر محمد اکرام نے تقریب میں شریک تمام شرکاء کا شکریہ ادا کیا۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب لارڈ نذیر احمد صاحب کا، لارڈ واجد صاحب کا، سابقہ ممبر آف یوتھ پارلیمنٹ جناب سجاد کریم کا، لوکل کونسلر کا، کمیونٹی لیڈرز کا، جنہوں نے اس پروگرام میں نہ صرف شرکت کی بلکہ پروگرام کو کامیاب بنانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ تقریب میں لارڈ واجد خان، لارڈ نذیر احمد، سابق MEP سجاد کریم، لیڈر آف پینڈل کونسل ندیم احمد مہر، چودھری محمد یوسف، چیئرمین چنار فری ڈائلیسس سینٹر UK نے شرکت کی۔ تقریب میں سالگرہ کا کیک بھی کاٹا گیا اور تمام امت مسلمہ کے لیے دعا کی گئی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ راجہ واجد، 92 نیوز، نیلسن۔ برمنگھم میں قرآن و حدیث کی روشنی میں روحانی علاج کی آگاہی کے لیے مراقبے کی ایک محفل منعقد ہوئی، جس میں علماء کرام کے علاوہ خواتین و حضرات نے بھرپور شرکت کر کے روحانی تسکین حاصل کی۔ اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق مضبوط اور دلوں کو منور کرنے کی غرض سے برطانیہ کے باقی شہروں میں بھی مراقبے کی محفلیں کروائی جائیں گی۔ مزید جانتے ہیں برمنگھم سے سید عابد کاظمی کی اس رپورٹ میں۔ ظفر مجید اور محمد رمضان دباغ کی طرف سے مراقبہ روحانی محفل سجائی گئی، جس میں نامور اسلامی اسکالر شیخ احمد دباغ نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے چلتے ہوئے حاضرین محفل کو مراقبہ کا طریقہ کار بتایا۔ اسلامی سائنٹیفک ریسرچر شیخ احمد دباغ کا کہنا تھا کہ ہم سب کو درست سمت پر پروان چڑھانے کے لیے جدید سائنٹیفک بنیادوں پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے کوشاں ہیں، تاکہ محبت، امن اور بھائی چارے کی فضا پیدا کر کے جہاں لوگوں میں پائے جانے والی ذہنی تناؤ، حسد جیسے بے شمار مسائل پر قابو پایا جا سکے۔
इस मौके पर शुरका का कहना था कि नौजवान नस्ल बेराह रवी का शिकार है और इसकी सबसे बड़ी वजह वालिदैन अपने बच्चों पर मसरूफियात की वजह से तवज्जो नहीं देते, जिसकी वजह से हमारा मुस्लिम मुआशरा जो दूसरे मज़ाहिब के लिए रोल मॉडल होना चाहिए था वो नहीं हो सका। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए शुरका का कहना था कोरोना वायरस के बाद रूहानी महफिलों का इनकात इंतहाई ज़रूरी है। इस तरह की आगाही नौजवान नस्ल के लिए दीन इस्लाम से रोशनाई हासिल करने का बेहतरीन जरिया साबित होंगी। A lot of the youth who have grown up in Muslim households never really get to taste the true essence and spirit of the deen, and majority of them are sort of, involved culturally and practicing the deen outwardly only, and that's why a lot of them don't feel that connection with Allah subhanahu wa ta'ala. And what we teach here, what we taught them in this spiritual gathering, स्पिरिचुअल हीलिंग का सेशन था। ये बहुत ख़ास सेशन था कि आज ज़माने में कोरोना वायरस और ये जो मामले चल रहे हैं, तो इसका हल असल में ये है कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ अपना जोड़ मिलाएं, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दिखाए और बताए तरीके हैं उनके ऊपर हम आ जाएं। That they have been in search of something like this for so long, and they've been to many places, but they have not been able to seek that connection with Allah subhanahu wa ta'ala, or be able to find that solution to their problems or their depression. Come to this event today with my wife. It was a very interesting event. I would recommend all the Muslims out there to come to events like this so we can learn the basics about self-healing, in our everyday life, where we get occupied with work, with family, friends, whatever it may be. Very refreshed and a lot lighter after doing today's spiritual healing session, and I heard about this originally from a friend and I wanted to see what it was all about, and I'm really glad that I attended because I felt a lot better after today's session. Allah ko yaad kaise kare, bas sunna ka तरीका है और माशाल्लाह सबको सीखना चाहिए। नौजवान नस्ल को दीनी रूहानी तरबियत के लिए उलमा व मशाइख का बरतानिया में अहम किरदार रहा है, जिसकी गर्ज से हर साल इस किस्म की महफिलें मुनक्किद की जाती हैं। महफिल के आखिर में उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। आयरलैंड के दारुल हुकूमत डबलिंग में एसोसिएशन ऑफ आयरिश पाकिस्तानी फिजिशंस एंड सर्जन्स ने कोविड लॉकडाउन के बाद अपनी तंजीम साजी के हवाले से इवेंट मुनक्किद किया, जिसमें POC आयरलैंड के साथ यादाश्त पर भी दस्तखत किए गए। मज़ीद जानते हैं फैसल मिर्ज़ा की इस रिपोर्ट में। कोविड लॉकडाउन के बाद आयरलैंड में कारोबारी और समाजी सरगर्मियां आहिस्ता आहिस्ता अपने मामूल पर आ रही हैं। इसी तनाजुर में आइसोलेशन आयरिश पाकिस्तान फिजिशियन एंड सर्जन ने डबलिन में अपनी तंजीम साजी के हवाले से इवेंट मुनक्किद किया, जिसमें तंजीम के मेंबरान के साथ साथ POC के ओहदेदारान ने भी शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए आपस तंजीम के ओहदेदारान ने कोविड के दौरान पाकिस्तानी डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ की खिदमात को खूब सराहा। तकरीब से खिताब करते हुए ऑप्स तंजीम के ओहदेदारान ने इस अज़म का इजहार किया कि इनकी तंजीम मुस्तकबिल में आयरलैंड में इसी मेहनत और लगन के साथ काम करने वाले पाकिस्तानियों की हौसला अफजाई करेगी और इसके साथ दीगर फलाही तंजीमों, खास तौर पर पाकिस्तानी तंजीमों के साथ वर्किंग रिलेशनशिप कायम करके मुल्क का नाम रोशन करने वालों के लिए किरदार अदा करती रहेगी। आज मुझे बहुत खुशी हुई है माशाल्लाह, ये जो डॉक्टर्स की एसोसिएशन है एप्स, इन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है और POC आयरलैंड जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश है कि इतनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन ने जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आयरलैंड के अंदर। ये जो पाकिस्तानी डॉक्टर एसोसिएशन है और POC है, आई थिंक दे आर डूइंग ए ग्रेट जॉब यहाँ पे, क्योंकि इन मुल्कों में रह के अपने वतन को, अपने कल्चर को और अपने लोगों को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। हमारा जो मेन मकसद है कि जस्ट टू bridge a build between Pakistani and Irish doctors and Irish community, especially for our young doctors, and to create more possibilities. जी, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने इस हमारे इवेंट को रौनक बख्शी है, especially हमारी एक्टिव team of APS Ireland. Thank you very much for inviting me in AIPPS. It was very nice function, and it was for the Pakistani community.
we all have to help each other. तकरीब के शुरका का कहना था कि पिछले 2 साल बहुत सख्त गुजरे हैं और इस तरह की तकरीबात न होने की वजह से परदेश में रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन लॉकडाउन के खात्मे के बाद उम्मीद है कि एक तरफ हम समाजी राब्ते भी कायम कर सकेंगे और मिलजुल कर अपनी कम्युनिटी की खिदमत के लिए किरदार भी अदा कर सकेंगे। एप्स आयरलैंड ने एक शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में जिस तरह अपनी इंपॉर्टेंस साबित की है, नए आने वाले पाकिस्तानी डॉक्टर जो पहले से मौजूद है, पाकिस्तानी डॉक्टर उनकी फैमिलीज, उनकी रीलोकेशन और सारे मामलात में हेल्प की है। इट्स रियली एक्स्ट्राऑर्डिनरी। आयरिश पाकिस्तानी जो डॉक्टर्स हैं उनकी वेल बीइंग के लिए, उनकी एजुकेशनल एंड रिसर्च एक्टिविटीज़ के लिए और उनकी डिफरेंट लोकेशंस में जब वो एवरी 6 मंथ मूव ओवर होते हैं उस दौरान उनको सपोर्ट करना। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरत हैं यहाँ की, क्योंकि मुझे 7 साल हो गए आयरलैंड में, लेकिन मुझे अभी भी लगता है जैसे मेरा हर रोज़ नई लर्निंग का दिन है। हम सब का मोटो यही है कि हम सब मिलजुल के काम करें, यूनिटी के साथ काम करें और हमारी आने वाली नस्ल के लिए हम लोग एक अच्छा मुस्तकबिल छोड़ के जाएं। Alhamdulillah, Allah give me the opportunity and experience to visit your beautiful country. And I, as an Irish ambassador with Pakistani connections, will do my utmost to support the Pakistan overseas community. Today we had a lovely gathering here, Association of Irish Pakistani Physicians and Surgeons, and there was a beautiful representation from all over the doctor community. आज हम यहाँ पे इकट्ठे थे कोलैबोरेशन के लिए। जो दूसरी पाकिस्तानी बेस्ड आयरिश सोसाइटीज़ हैं, बहुत अच्छी गैदरिंग रही। We are very hopeful. It was a good meeting. इस मौके पर पीओसी के सदर राना उस्मान ने पीओसी के प्लेटफॉर्म से ऑप्स आयरलैंड को हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी करवाई और पीओसी के साथ इलाक के मसूदे पर दस्तखत करके एक नए बाब का आगाज किया। एप्स आयरलैंड के आज के इस इवेंट में बड़ी तादाद में यंग क्राउड देखने को नजर आया है। इसके साथ साथ सीनियर जो डॉक्टर्स हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और उन्होंने भी अपनी एडवाइसेस और अपना जो वेल विशेस हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए इन्हें पेश की हैं। इसके साथ साथ पीओसी का जो वफद है उन्होंने भी इस इवेंट में आए हैं ये लोग और यहाँ पर एक मेमोरेंडम भी साइन किया है जिसके साथ अब एप्स पीओसी के साथ मिलकर आयरलैंड में पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है उनके लिए काम करेंगे। फैसल मिर्जा, 92 न्यूज़, डबलिन, आयरलैंड। स्कॉटलैंड की आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी की बिलीव इन स्कॉटलैंड हामी जमात ने आइंदा लाहेअमल का ऐलान कर दिया। डंडी और एंगस आज़ादी ग्रुप के हामियों का स्लेयर गार्डन डंडी में तकरीब का अहतमाम किया गया जिसमें कसीर अफराद ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात कैसर हबीब की रिपोर्ट में। स्कॉटलैंड की आज़ादी के लिए होने वाले पहले रेफरेंडम के 7 साल मुकम्मल होने पर डंडी में दूसरे रेफरेंडम की तैयारियों के लिए तहरीक जोर पकड़ गई। इस हवाले से डंडी और एंगस आज़ादी ग्रुप ने स्लेसर गार्डन में एक तकरीब का एहतमाम किया जिसमें आज़ादी के हामी सरगर्म कारकुनान और अफराद ने शिरकत की। जेन फिलिप ने अपनी जमात की क़ियादत करते हुए बिलीव इन स्कॉटलैंड से मुतल्लिक आइंदा मकामी एक्शन प्रोग्राम के मुतल्लिक बताया। Independence is normal. This country, this beautiful country of Scotland and its people are well placed both financially and intellectually to forge our own path. Our Scottish Government, who have done so many things for the people of Scotland, and that's without question. For our children and grandchildren is in an independent Scotland. We've seen the damage that's been caused by the Westminster policies, the biggest of which is obviously Brexit, pulling us out of the European Union against our will. But the damage that has been caused by Brexit is only just begun. We are seeing food shortages. Today is the beginning of our campaign for an independent Scotland. It's been a very difficult time the last 2 years. It has been for everybody. But for yes groups, we've been forced to draw in on ourselves and not communicate and not do very much apart from the usual Zoom meetings. So when today's event was announced, the Believe in Scotland Action Day, we thought it'd be a wonderful opportunity for a number of our activists to get together again to plan what we're going to do in the future. We have children going to bed hungry here, which shouldn't happen because we are a rich country and the resources that go down to Westminster are funding vanity projects like the high-speed rail that we've got to pay for, but it doesn't even come anywhere near Scotland. I think in the next 18 months, 2 years, there will have to be a referendum in Scotland because that's the wish of the Scottish people. And if they won't give us one, then we will organise one ourselves. डंडी के मशहूर अवार्ड याफ्ता सिंगर शैना वेलिंगटन ने स्कॉटलैंड की आज़ादी पर गीत गाकर हाज़रीन की दाद वसूल की।
land of Larboy, Fiona Younger, things the fell gallows or the burgers. प्रोग्राम में काउंसलर हीथ वाइट, कैथरीन और दीगर ने अपने अपने जज्बात का इजहार किया और अनकरीब दूसरे आज़ादी रेफरेंडम और एक आज़ाद और खुद मुख्तार स्कॉटलैंड के लिए पुरुमीद और पुरजोश नजर आए। स्कॉटलैंड के लोगों की चॉइस है कि वो अपने स्कॉटलैंड को इंडिपेंडेंट देखना चाहते हैं। ना सिर्फ यहाँ के स्कॉटिश लोग बल्कि यहाँ की बेम कम्युनिटी भी वो स्कॉटलैंड को इंडिपेंडेंट देखना चाहती है और वो समझती है कि इसमें ही इनके बच्चों का बेहतरीन मुस्तकबिल है। कैसर हबीब, 92 न्यूज़, डंडी। पाकिस्तान क्रिकेट के खिलाफ एक और घिनौनी साजिश। इंग्लैंड ने भी पाकिस्तान का टूर मंसूख कर दिया। न्यूजीलैंड की टीम दौरा अधूरा छोड़ गई थी। दोनों टीमों ने सिक्योरिटी को बहाना बनाकर पाकिस्तान के साथ धोखा किया। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। न्यूजीलैंड के बाद इंग्लैंड टीम के दौरा पाकिस्तान से इनकार पर साबिक आलमी क्रिकेटर्स और सियासतदान पाकिस्तान की हिमायत में मैदान में आ गए। पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर डॉक्टर क्रिश्चियन टर्नर ने ट्वीट करते हुए कहा कि इंग्लैंड टीम पाकिस्तान न आने के ऐलान से अफसरदा हुआ। क्रिकेट मद्दाहों की मायूसी को समझ सकता हूँ। 2022 में इंग्लैंड के दौरे के लिए पुरुमीद है। पाकिस्तान के साबिक हेड कोच मिकी आर्थर ने इसे पाकिस्तानी शायकीन के लिए मायूस कुन करार दे दिया। साबिक इंग्लिश कप्तान और कमेंटेटर माइकल वॉन ने कहा, हैरानगी इस बात पर है कि ये मैचेस यूएई में क्यों नहीं खेले जा सकते। मारूफ कमेंटेटर माइक हेजमैन ने इंग्लैंड के दौरे से इनकार को बहानाबाजी करार दे दिया। श्रीलंकर क्रिकेटर देमोथ करुणारत्ने ने कहा, दिल पाकिस्तानी मद्दाहों के लिए अफसरदा है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने इंग्लैंड के इनकार पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, न्यूजीलैंड के बाद इंग्लैंड के इनकार से पाकिस्तानी क्रिकेट और मुल्क का इमेज मुतासिर हुआ। इल्जाम तराशी से कुछ हासिल नहीं होगा। पीसीबी के बयान से ज्यादा मुअस्सर सिफारतकारी की जरूरत है। बरतानिया में बसने वाली पाकिस्तानी नयाद अहम सियासी शख्सियात ने न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के दौरा पाकिस्तान ख़त्म करने को साजिश करार दिया है और उन्होंने न्यूजीलैंड हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि हुकूमत पाकिस्तान ICC से सख्त एक्शन लेने का मुतालबा करे। उनका मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। जो अभी न्यूजीलैंड ने अपना दौरा पाकिस्तान, जो क्रिकेट का दौरा पाकिस्तान ने उन्होंने मनसूख किया है, ये नहायत ही अफसोस की बात है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने और उसके अलावा जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, स्पेशली हमारी जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, उन्होंने तो अमन और अमान के हवाले से पूरी उनको गारंटी दी थी और न्यूजीलैंड की जो इंतज़ामिया है उन्होंने बाकायदा दौरा किया था और इत्मीनान का इज़हार किया था। अगर उनको इतने कंसर्न्स थे तो वो पाकिस्तान आते ही ना। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान की साख को, पाकिस्तान की इज़्ज़त को नुकसान पहुंचाने के लिए ये किया। अगर वो पहले ना आते तो वो बेहतर होता, बजाय इसके कि वो आए और 6 दिन रहने के बाद वो वापस चले गए। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को प्रोटेस्ट जो डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल वो तो है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड के साथ भी ये उठाना चाहिए। देखिए, मैं सख्त मज़म्मत करता हूँ न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम, उनका फ़ैसला है कि वो पाकिस्तान में वो नहीं खेलेंगे। मुझे समझ नहीं आ रही, इसके पहले भी वेस्ट इंडीज़, मुख्तलिफ टीम, जिम्बाब्वे जो टीम वहाँ टूर कर चुके हैं। पाकिस्तान को जो सिक्योरिटी सिस्टम बिल्कुल उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने फाइनलाइज किया था, लेकिन ये बहुत ही बड़ा एक फ़ैसला उन्होंने लिया है, लेकिन ये डैमेजिंग है पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के लिए। और मैं समझता हूँ पाकिस्तान को ये केस ICC के सामने लेकर आएँ। न्यूजीलैंड क्रिकेट का जो रोल किया है उन्होंने, पाकिस्तान आके फिर क्रिकेट को ना प्ले करना और सिक्योरिटी को यूज़ करना, ये कंडेम्नेबल है। ये स्पोर्ट है, स्पोर्ट को पॉलिटिक्स की तरफ नहीं लाना चाहिए, पॉलिटिक्स से फ्री होना चाहिए। पाकिस्तान जो है वो बहुत ही अब सेफ़ कंट्री है। हर जो मुल्क मेन है उनकी, अगर आप गवर्नमेंट के साथ वेबसाइट पे जाएं, वो बताएंगे कि थिंग्स इम्प्रूव हो रहे हैं। तो ये कोई वजह नहीं कि उनको इस तरह कैंसिल करना चाहिए था। अगर को उनको तशवीश थी, पाकिस्तान के पास मजबूत इदारे हैं जो उसके रिस्पांस को डील कर सकते हैं। 92 News as a community channel has reached out seeking reactions to the actions of the New Zealand cricket team. Really, it's been a very puzzling experience for somebody like me for a number of reasons. Firstly, whatever concerns, new concerns or existing concerns that may have arisen should have been discussed with the Pakistani authorities in the first place, and a number of measures could have been put into place. मैं 92 की वसात से सिर्फ इतना ही कहूँगा कि न्यूजीलैंड को लास्ट मोमेंट के ऊपर इस तरह टीम वापस लेके नहीं जाना चाहिए था। बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान में क्रिकेट आ रही है और ये क्रिकेट फैंस, क्रिकेट प्लेयर्स और पाकिस्तान के लिए ये मेरे ख्याल में वजह तशवीश है, लेकिन ओवरऑल भी ट्रस्ट डेफिसिट को मिलके ख़त्म करना चाहिए। यौम दिफा पाकिस्तान के सिलसिले में क्रिकेट टूर्नामेंट का इनाकात। लंदन के नवाही इलाके स्लाव में शायकीन क्रिकेट ने जहां अफवाज पाकिस्तान को सलाम पेश किया, वहीं क्रिकेट के जरिए समाजी राब्तों की बहाली पर खुशी का इजहार भी किया। न्यूजीलैंड के दौरे पाकिस्तान की मनसूखी पर भी गहरे दुख का इजहार किया गया।
मज़ीद तफसीलात जानते हैं वसीम काज़मी की इस रिपोर्ट में। लंदन के नवाही इलाका स्लाव की मकामी क्रिकेट ग्राउंड में फातिमा शफी ट्रस्ट के चेयरमैन हाजी मोहम्मद इकबाल और चीफ ऑर्गेनाइजर राना बाबर के ज़ेर एहतमाम क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तानी हाई कमीशन, लंदन 11 साउथ ईस्ट क्रिकेट लीग, बेस्ट वे 11 और पाक मीडिया 11 ने हिस्सा लिया, जबकि मेयर ऑफ स्लाव मोहम्मद नज़ीर और मारूफ समाजी और कारोबारी शख्सियत चौधरी इश्तियाक अहमद ने खुसूसी शिरकत करके खिलाड़ियों की भरपूर हौसला अफजाई की। टूर्नामेंट में हर मैच 10 ओवर्स पर मुश्तमिल रहा, ताहम फाइनल में साउथ ईस्ट क्रिकेट टीम को हराकर बेस्ट वे क्रिकेट टीम ने जीत अपने नाम कर ली, जबकि पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन और पाक मीडिया 11 के खिलाड़ियों की शानदार कारकर्दगी पर शायकीन क्रिकेट ने भरपूर दाद दी और कहा कि यौम दिफा के सिलसिले में इस तरह के सेहतमंद मौके दियार गैर में गनीमत से कम नहीं। डिफेंस डे के लिहाज से ये जिन्होंने एहतमाम किया, स्पेशली यंग क्रिकेटर्स इन्वॉल्व किए हैं, इट्स वंडरफुल टू सी दैट। आई होप इट कैरीज ऑन। पाकिस्तानी कम्युनिटी है, लंदन की 4 टीमें हैं, पाकिस्तान हाई कमीशन भी है, हमारी पाक मीडिया क्रिकेट क्लब भी है और बेस्ट वे की टीम है। 4 टीमें हम यहाँ पर खेल रही हैं, तो बहुत अच्छा माहौल, बहुत अच्छी मुलाकात हुई है। ये बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ है, स्पेशली इस साल जो मैंने देखा है यूके में बहुत सारी क्रिकेट लीग्स ने मैचेस कराए हैं, और स्पेशली दफ़ाए पाकिस्तान के हवाले से और 14 अगस्त के हवाले से ये एक बहुत खुशाइंद इकदाम है और इसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। पाकिस्तान हाई कमीशन की टीम ने इसमें शिरकत की और बड़ा हमने एंजॉय किया इस टूर्नामेंट को। अनफॉर्चुनेटली जो टीम्स इसमें थी उन्होंने माशाल्लाह बड़ी अच्छी तैयारी की थी। पाक मीडिया और फातिमा शफ़ी फाउंडेशन के ज़ेर साया आज हमने इसको इधर सलाव में मुनक़्क़द किया है। इस मैच का मकसद ये है कि पाकिस्तान फ़ौज को जो है वो ख़राज अक़ीदत पेश करना है। हम नेट्स में बार बार खेल के थक के बोल करके बहुत मज़ा आया। We had amazing time. It was amazing. Even though we lost, it was enjoyable game. Yeah, it's an amazing ground. Hopefully we can play again here. हम लोगों ने क्रिकेट मैच खेला और फुटबॉल मैच में हमें बहुत मज़ा आया था, और जब हम लोग फुटबॉल खेल रहे थे वहाँ पे हम सारों ने इतने बड़े स्कोर्स किए थे। इस मौके पर खिलाड़ियों और शायकीन क्रिकेट ने कहा कि पाकिस्तान की सालमियत अफवाज पाकिस्तान का मजबूत होना है, हमारा दिफा नाकाबिल तस्खीर है और हम अपनी अफवाज को सलाम पेश करते हैं। उनका कहना था कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं, न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम का दौरा मनसूख होना गहरे दुख का सबब बना। मेरे ख्याल में कोई सिक्योरिटी का इशू नहीं था, जबकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और बाकी ऑफिशियल सब इस चीज़ की जिम्मेदारी ले रहे थे कि कोई ऐसी चीज़ नहीं। जस्ट बिफोर द गेम स्टार्ट्स वो टॉस से पहले उन्होंने वो पुल आउट किया। पाकिस्तान जो न्यूजीलैंड का था, आई थिंक इट वाज वेरी सैड डिसीजन फ्रॉम द न्यूजीलैंड पीपल। दे हर्ट अ लॉट ऑफ इमोशन फ्रॉम पाकिस्तान प्लेयर्स एंड द कम्युनिटी। टूर्नामेंट के अख्तिताम पर तमाम टीमों ने पाक फौज जिंदाबाद पाकिस्तान पाइंदाबाद के नारे लगाकर माहौल को गरमा दिया और मेयर ऑफ स्लाव मोहम्मद नज़ीर अहमद और चौधरी इश्तियाक ने पहले और दूसरे नंबर पर आने वाली टीमों को ट्रॉफी जबकि दीगर खिलाड़ियों को मेडल पहनाए।